Good evening, everyone. My name is Sumit Banerjee. Again, I am joining with you with an amazing platform, learning platform with Sumit. So, today, again, I am continuing with the chapter Light Physics. Very interesting subject. If you want to learn, if you want to do hard work, you can achieve the 100 out of 100 in science and in also physics. So, I had discussed topic incident ray, rotation of incident ray and rotation of plane mirror. Hope you uh, mm, recall that one. Okay. So from that topic, I had not give you a single question. So today I will going to start my lecture. I'm going to start my lectures. Sorry, I'm going to start my lecture with this question. So see, find the net rotation of the reflected ray. So this is the question. You watch this question and tell me the answer. The 5 degree is the rotation. 5 degree is the rotate. Which one is rotated? This is incident ray or reflected ray? Tell me that this is an incident ray or reflected ray. So you can't judge because arrow is not given. So first I am giving the arrow. This arrow is towards the mirror. So this is incident ray. Okay, IR. So hope this doubt will be clear. So 5 degree the incident ray is rotated. In which direction you judge? In which direction you judge? 10 degree plane mirror is rotated. So you judge the direction of the rotation of plane mirror and the rotation of incident ray. Okay. The angle between the normal and the incident ray is 60 degree. 60 degree. Okay. Find the net rotation. So very easy question. But the thing is that if your conceptual clarity, you have no conceptual clarity about that, so please first saw the previous lecture, then move on to this lecture. Okay, so this is a very important suggestion. Now focus on this net rotation. This is the sign of rotation. Everyone knows this because you had see this sign in class 9, 8 in your previous classes or in class 10 also. I hope that net rotation. So net rotation is 5 degree. See, this direction is anti-clockwise. If you see, this is like that. So anti-clockwise. This is also anti-clockwise. So anti-clockwise. So first I write this. So 2 into 10 degree anti-clockwise. Why I write 2 into 10 degree? Hope you know. Here ask reflected ray, reflected ray. So reflected ray, if mirror is turned 10 degrees, so reflected ray will turn 2 theta. In what sense? In same sense, not in opposite sense. Means if this mirror will turn clockwise, then reflected ray 2 theta times turns clockwise. If this mirror turns anti-clockwise, then the reflected ray will also turn 2 theta times anti-clockwise. So in same sense, same direction. But so this is 2 into 10 and anti-clockwise, so 20 degree plus. Why I add this? As because the direction of both are same. Both are same. This is also same. This is also same. So I write simply 5 degree because reflected ray is only 5 degree. See, one thing, focus. One thing you focus. This is not anti-clockwise. I did a mistake. I said this is anti-clockwise. No, this one is not anti-clockwise. This is a clockwise. But why I write anti-clockwise? Because reflected ray opposite sense. If incident ray turns theta, then reflected ray is also in turn theta, but in opposite sense. So direction is opposite. So this is clockwise. So that one is anti-clockwise. So that is why I add this. Okay. Hope you understand. So 25 degree is the answer, एंटी क्लॉकवाइज. वेरी इजी टॉपिक. अब मैं थोड़ा हिंदी में भी बता देता हूं. देखो समझो, 5 डिग्री अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा तो 5 डिग्री वहां से एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा, क्योंकि ऑपोजिट सेंस बोला था. थीटा अगर आप इंसिडेंट रे को घुमाओगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा घूमेगा, लेकिन वो ऑपोजिट सेंस मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन. यहां पर मिरर को अगर आप 10 डिग्री घुमाओगे तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूमेगा, लेकिन वो सेम सेंस सेम डायरेक्शन. लेकिन यहाँ 10 डिग्री है तो इसका मतलब वो 10 डिग्री होगा, ऐसा जरूरी नहीं है. वो 10 नहीं, वो 20 होगा, क्योंकि उसका डबल होता है. 10 इंटू 2 20, लेकिन वो कौन सा डायरेक्शन होगा? एंटी क्लॉकवाइज, सेम सेंस. ये भी एंटी क्लॉकवाइज. अगर आप इसको सर्कल बना के देखोगे तो आपको उल्टे तरीके से ही बनाना पड़ेगा. एरो किस तरफ है?
आप चलोगे तो आपको पता चल जाएगा। इधर घुमाया जा रहा है, आप खुद देखो ना, ऐसे ऐसे हो रहा है और ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, आसान है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पे लिखना। ऐसे भी बहुत आसान भी नहीं है, प्लेन मिरर में कई बार गलतियां हो जाता है। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, टॉपिक दीजिए वेलोसिटी रिलेटेड टू मिरर। टॉपिक दीजिए वेलोसिटी रिलेटेड टू प्लेन मिरर, या फिर मिरर भी दे सकते हो, प्लेन मिरर, क्योंकि प्लेन मिरर के बारे में बताना है। कनकेव कन्वेक्स में नहीं आ रहा, मैं कनकेव कन्वेक्स में शायद भी ना मैं बताऊं, टफ हो जाता है। वेलोसिटी रिलेटेड टू मिरर, क्लियर? वेलोसिटी रिलेटेड टू मिरर, ध्यान देना, वेलोसिटी रिलेटेड टू मिरर, ध्यान देना। वेलोसिटी रिलेटेड टू मिरर। अच्छा, मैंने लास्ट लेक्चर में वेलोसिटी का डेफिनेशन लिखाया था, 9 में भी आप लोग पढ़ चुके हो और बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों मैंने लिखाया था? क्योंकि इसका इस मिरर से काम है। ये टॉपिक मुझे बताना है आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, वेलोसिटी रिलेटेड टू मिरर, ये कोई प्लेन मिरर है। हाँ, तो ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? पॉलिश्ड सरफेस के सामने या अनपॉलिश्ड के? पॉलिश्ड के सामने। तो मैंने यहां पर इसको कोटिंग कर दिया, कोटिंग किया तो यहां पर, ठीक है, ये वर्टिकल, ये मिरर कैसा है बताओ, वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है? बताओ। ये दिस मिरर इज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। लेटा हुआ होता तो हॉरिजॉन्टल होता, तो ये मिरर कैसा है? वर्टिकल है, वर्टिकल है ना। तो इसके आगे ये एरो मैं किस लिए दे रहा हूं? इधर कहीं ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओ इज फॉर ऑब्जेक्ट, ध्यान देना। और यहीं पर मिरर है, इमेज है, सॉरी, इमेज यहां पर, ऑब्जेक्ट यहां पर। देखो इस डिस्टेंस को मैंने कहा है एक्सओ, कोई दिक्कत? एक्सओ क्यों बोल रहा है? एक्स आई, और इसको मैंने बोला एक्सओ। कुछ गलती है क्या इसमें? देखो तो, एक एक्स आई है और एक एक्सओ है, गलती है क्या बताओ तो मुझे। अगर कुछ गलती है तो बताना, क्या गलती हो सकता है? कुछ गलती है? कुछ गलती नहीं? एक बात मेरे ध्यान से सुनो, समझो। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी। किसी ने पढ़ा है क्लास 9 में थोड़ा बहुत? अगर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसमें जो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की मैं बात कर रहा हूं, उसमें रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बहुत था, जो मैंने कभी बताया नहीं, 9 में भी नहीं बताया, मुझे याद है, उतना इंपॉर्टेंट था नहीं। देखो इसको ऐसे याद रखना है, वेलोसिटी बी ए होता है, वेलोसिटी बी माइनस ए, और वेलोसिटी ए बी होता है वेलोसिटी ए माइनस वेलोसिटी बी। ये पता है? इसको एक बॉक्स के अंदर साइड में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर थोड़ा सा इसका कहानी भी है, ठीक है? अच्छा, ध्यान से देन सुनना। वेलोसिटी बी ए को आप क्या बोलते हो? वेलोसिटी बी रेस्पेक्ट टू ए कि वेलोसिटी ए रेस्पेक्ट टू बी? क्या बोलते हैं वेलोसिटी बी ए को? वेलोसिटी ए मतलब कि, हाँ, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, ये होता है वेलोसिटी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी। और वेलोसिटी बी ए मतलब वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए। बी का ए देख रहा है, बी का वेलोसिटी ए देख रहा है, ए देख रहा है, ध्यान देना, और ए का वेलोसिटी बी देख रहा है। तो दूसरा वाला के काम है देखने का, और पहला वाला जो है उसका वेलोसिटी देखा जा रहा है दूसरे के द्वारा, लेकिन माइनस भी वैसे ही हो रहा है, वेलोसिटी ए माइनस बी, वेलोसिटी बी माइनस ए, पहला और दूसरा इसी के बेस्ड पे है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मुझे जगह चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आता है ये फॉर्मूला, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव में, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं रहता तो कर नहीं पाते। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जिनसे छूट जाता है वो लोग पॉज करके ले लिया करें, ठीक है? चलिए, तो मैं कह सकता हूं डेल्टा ऑफ एक्स बाय डेल्टा ऑफ टी इक्वल टू वेलोसिटी।
वेलोसिटी तो यही होता है डेल्टा ऑफ डिस्टेंस बाय डेल्टा टाइम, डेल्टा डी बाय डेल्टा टी या डेल्टा एक्स। इसको मैं लिख सकता हूं एक्स आई डेल्टा एक्स आई डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एक्स ओ माइनस बाय डेल्टा टी। सही लिखा? सही लिखा कि नहीं लिखा बताओ, बताओ। कुछ एक छूटा है कुछ एक छूटा है। इसको एक्स आई एम बोलेंगे ना, वही सेम केस पता होगा आपको। इमेज वेलोसिटी ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज सीन बाय मिरर या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट सीन बाय मिरर, वैसा। देखो अब इसे कैसे लिखोगे, इसको आप लोग ये भी तो लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ आई एम, आई को मैं स्मॉल लिख दे रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ आई एम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ओ एम, लेकिन माइनस होगा। वेलोसिटी तो होता है डेल्टा एक्स बाई टी, ये तो पता है कि नहीं? इतना तो पता है, बच्चों वाला चीज 9 में पढ़े हो और रिवीजन भी बहुत बार हो चुका है। जब से मैं प्लेन मिरर को शुरू किया, कॉन्सेप्ट में डीप घुसा हूं, तो ये जो चीज है इसको ध्यान रखना। इतना हुआ, इसके बाद क्या है देखो। अब इसको क्या जानते हो आप लोग, वेलोसिटी आई एम को मैं इसको कैपिटल कर देता हूं, इसको लोग कुछ ना कुछ और समझ लेंगे। वेलोसिटी आई माइनस वेलोसिटी एम लिख सकते हो, क्योंकि ये पहले रहता है फिर माइनस होके वेलोसिटी एम। इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ वेलोसिटी ओ माइनस वेलोसिटी एम। क्यों मैंने माइनस ऑफ लिखा, ये दोनों भी तो माइनस होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, लेकिन बाहर ऑलरेडी एक माइनस है तो उसको भी मुझे लिखना है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी मिरर। प्लस क्यों हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, पता है कि नहीं? ये सब बच्चों वाला चीजें पता होना चाहिए, भूल के भी गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब आप लोगों को 6-7 में बता दिया था, ठीक है। अब मिरर को क्या करना, वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये जो मिरर है, इमेज बोल रहा हूं, मिरर है, अगर सेम साइन होता तो कट जाता, ध्यान रखना। तुम किसी को भी इधर लेके जाओ चाहे उधर लेके जाओ, कट ही जाता। यहाँ ऑपोजिट साइन है तो मैं इस वेलोसिटी ऑफ मिरर को उधर लेके जाता हूं, वरना इसको भी इधर ला सकते हो, आएगा सेम। देखो इसको इधर लाता हूं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, और इस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को इधर लाता हूं, इधर जगह नहीं है, छोड़ो इधर करता हूं। देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आप लोगों ने देखा, यहां लिखता हूं, वेलोसिटी ऑफ इमेज के साथ ऑब्जेक्ट का सम हो जाएगा। क्यों होगा, मैंने बोला माइनस वाले को, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को उधर लेके जाओ, और ये वाले माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर को इधर लेके आओ, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर हो जाएगा। दोनों सेम है तो दोनों का सम होगा, प्रोडक्ट होता तो स्क्वायर हो जाता। प्रोडक्ट की मैं अभी बात नहीं कर रहा, अगर मैं प्लस का बात करूं तो ये 2 ऑफ वेलोसिटी एम हो जाएगा, और ये तो प्लस हो ही गया है। अब इस 2 का बस एक काम रह जाएगा, इसको नीचे आ जाना है। कैसे आना है, मल्टीप्लाई है तो डिवीजन होगा, सिंपल बात है। अब आपका मूड हो तो आप इसको दोनों के नीचे भी लिख सकते हो, वेलोसिटी इमेज बाय 2 प्लस वेलोसिटी ऑब्जेक्ट बाय 2, या फिर दोनों का सम बाय 2 भी कर सकते हो, एक साथ भी लिख सकते हो, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इसमें एक और चीज मैं ऐड ऑन कर रहा हूं, तो ध्यान देना, दिस formula can be used only with क्या, only with proper sign convention, proper sign convention। देखो नीचे लिख दिया हूं, बोल भी दे रहा हूं, प्रॉपर साइन कन्वेंशन। अगर दिखाई नहीं देता तो बोल भी दे रहा हूं, इसको दिमाग में रखना। प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ ये फॉर्मूला यूज होगा, कि नेगेटिव हो रहा है कि पॉजिटिव। कराऊंगा क्वेश्चन, टेंशन मत लो, उसी से आइडिया लगेगा। क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना लगाओगे क्वेश्चन, जितना बनाओगे, उससे आपको आइडिया लगेगा किस तरीके से पूछता है सवाल या क्या अप्रोच होता है। देखो यहां पर माइनस लिया कैसे जाता है, तो ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, उस तरफ। मिरर के इस तरफ क्या होता है पता होगा आपको, मिरर के इस तरफ अनपॉलिश सरफेस होता है, नेगेटिव, नेगेटिव होता है ना। इस तरीके से आपको पता होगा कार्टेशियन प्लेन, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, पता था, पता है ये कार्टेशियन प्लेन, तो इसको फॉलो करता है। तो आप देखो उस तरफ जा रहा है तो नेगेटिव मानते हैं हम लोग इसको, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को, ठीक कि नहीं? इज इट क्लियर? ओके।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए वेलोसिटी का डेफिनेशन पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, अगर आपको तब भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स पे लिखना, ठीक है। तो टॉपिक तो कवर हो गया, आप टॉपिक को भी मिटाते हैं, क्वेश्चन एक बताता हूं आपको, तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। यहां पर बोला है क्वेश्चन में कि एक मिरर है, ओहो मिरर टेढ़ा हो गया है, ये मिरर का अनपॉलिश सरफेस, ये पॉलिश्ड, यहां पर ऑब्जेक्ट को मैंने रखा, इसका कुछ इस तरफ डायरेक्शन है, ये ऑब्जेक्ट कितने स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, मिरर का भी इस तरफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मुझे बताओ, टेल मी फाइंड द वेलोसिटी, वेलोसिटी किसका चाहिए, ऑब्जेक्ट का दिया है, मिरर का तो इमेज वी आई, वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। कैसे फाइंड करोगे, आंसर बताओ, आंसर नहीं प्रोसेस के साथ करना, डायरेक्ट कोई तुक्का वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। आंसर मतलब पूरा सॉल्व करिए फिर आंसर फाइंड करिए, ठीक है। क्या क्या फॉर्मूला मैंने बताया, फॉर्मूला बताया तो उसके साथ एक की लाइन भी यूज किया, प्रॉपर साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन को ध्यान देना, कहां है मिरर का वेलोसिटी, कहां है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। चलिए अब मैं कर रहा हूं, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान, डेटा सब दिया हुआ है, फॉर्मूला भी पता है, साइन कन्वेंशन भी आपको पता ही होगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय 2, फॉर्मूला इसको याद कर लो एकदम, बाय 2 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर। जो लेट देख रहा है, शुरुआत का इंट्रोडक्शन वगैरह स्किप किया तो ये फॉर्मूला इसको याद कर लो, डेरिवेशन भूल जाओ, तो ये हुआ, ठीक है। मैं डेरिवेशन उनको भी भूलने वाला जो शुरू से देख रहा है, डेरिवेशन कहीं नहीं पूछता, फॉर्मूला याद रखोगे क्वेश्चन बनेगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको नहीं पता, ये फाइंड करना है, प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, प्लस लिखोगे नाम का प्लस, लेकिन ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, माइनस की तरफ, तो साइन कन्वेंशन में -20 लिखोगे, बाय 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 2 तो रहेगा ही, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर दिया है -10 हुआ, -10 मैंने लिखा, ठीक है। देख रहे हो कि नहीं देख रहे, ठीक है, -10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये इधर प्रोडक्ट होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज -20, प्लस माइनस तो माइनस होता है, बोला था प्लस इंटू माइनस, याद रखना इसको माइनस, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज -20, 2 इक्वल टू 10, इतना बेसिक मैथ्स तो आपको आता ही है ना, इसलिए तो मैंने बोला प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस भी माइनस होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, तो 2 इंटू -10 यहाँ -20 हो गया, सेम कहानी, वेलोसिटी ऑफ इमेज -20, अब ये माइनस उधर गया तो प्लस हो जाएगा, कट जाएगा दोनों तो जीरो, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जीरो है, मतलब इमेज जो है वो क्या है, रेस्ट में है, इमेज क्या है, रेस्ट में है, जीरो है तो पता चल गया कि रेस्ट में है, जीरो से आइडिया लग गया कि इमेज इज इन रेस्ट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, समय दे रहा हूं मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी, समझने के लिए भी, और बार बार बोल रहा हूं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे लिखना, ठीक है। सब कुछ आप लोगों के लिए बेनिफिट करने का कोशिश कर रहा हूं, आप लोग भी थोड़ा हार्डवर्क करिए, ठीक है, ऐसे कोई डरने का बात नहीं है, वैसे भी आप क्यों डरोगे, डर के आगे जीत है। चलिए अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं, अब कोई टॉपिक या एक और क्वेश्चन, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इससे एक और कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा। देखो यही मिरर है ना, मैंने कहा अभी तुम्हें बता रहा हूं कि ये रेस्ट में है मिरर, ध्यान से सुनना, मिरर इज इन रेस्ट, क्वेश्चन है मिरर इज इन रेस्ट, हाँ, रेड दिखाई दे रहा है ना, ऐसा मत बोलना कि रेड दिखाई नहीं दे रहा, अच्छा रेड को अभी रखता हूं, यहां देखो, ये मैंने लिखा मिरर इज इन रेस्ट, REST, रेस्ट, सो नहीं रहा वो रेस्ट नहीं, मतलब
रेस्ट है, स्टेशनरी है, ठीक है, हिल नहीं रहा, मूव नहीं कर रहा। एंड ऑब्जेक्ट मूव्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दिया है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड द वी आई, वी आई मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब देखो मैंने डायग्राम बना दिया है, एरो अब इस तरफ है, इस तरफ राइट साइड, नॉट लेफ्ट साइड, 20 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना ये सब जो चीजें मैं बता रहा हूं, 0 मीटर पर सेकेंड मिरर का, रेस्ट में है मतलब ये तो 0 होगा। आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ इमेज, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपको डायरेक्शन पता चलेगा कि हाँ कौन सी डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, देखो इसी से एक कॉन्सेप्ट भी आएगा। सॉरी फॉर डिस्ट्रप्शन, चलिए क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं। रेस्ट में है मिरर, मिरर क्या है, रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट क्या है, मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 20 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड करना है। तो देखो फॉर्मूला आपको पता है, फटाक से करते हैं इसको, जल्दी से जल्दी, आसान है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का सम बाय 2 इक्वल टू ये है, ठीक है। इमेज आपको पता नहीं, फाइंड करना है, तो मैं उसको वैसे का वैसे ही रखूंगा। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दिया है 20 प्लस 20, क्यों पहले प्लस 20 लिखा, देखो वो जब मैंने पहले मेंशन भी कर दिया था कि राइट साइड जा रहा है, तो साइन कन्वेंशन ध्यान देना, राइट साइड जा रहा है तो प्लस, लेफ्ट होता तो माइनस होता, ठीक है। बाई 2 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब क्या होगा, अच्छा वेलोसिटी ऑफ मिरर दिया हुआ है, सिर्फ मिरर लिखने से नहीं होगा, 0। देखो 2 को मल्टीप्लाई करोगे 0 से, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा, इतना तो पता है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस 20 इक्वल टू 0। क्यों 0 लिखा, क्योंकि वो उधर गया, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज उधर जब जाएगा 20 तो माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। इससे भी टफ क्वेश्चन बनता है, लेकिन अभी आपको नहीं जानना, बेसिक क्वेश्चन करो, टफ भी करने का कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। अगर इसके अकॉर्डिंग हो या नहीं भी हो, कुछ कॉन्सेप्ट खुद से भी जानने का कोशिश करो, बाकी अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं लाऊंगा, ठीक है। तो ये माइनस 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसको मैंने गोल कर दिया। अच्छा एक बात मुझे बताओ, तुम इस साइन को भूल जाओ, रिमूव द साइन, यहां पर भी तो प्लस था, प्लस और माइनस को भूल जाओ। मुझे एक बात बताओ, इज द मैग्नीट्यूड इज सेम, सो एक लाइन यहां पर लिख लो, माइनस को भूल जाओ, मैंने मतलब लिखना है आंसर के टाइम में, ऑप्शन को भी -20 लिखना है, आंसर यही है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि द मैग्नीट्यूड इज सेम। सो व्हेन द मिरर इज इन रेस्ट, the mirror doesn't move with any velocity, then the magnitude of the velocity of image is same, yeah, is similar, yeah, is equal, same similar is not appropriate, is equal to the velocity of object magnitude. So magnitude of velocity of image is equal to magnitude of velocity of object when mirror is in rest, when mirror is stationary. So ये लाइन लिख लो एक साइड में बॉक्स बना के, काम की बात बोल के, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब जो है थोड़ा फंसाता है, मैं बता रहा हूं, तो ध्यान से सुने हो तो ठीक है, वरना दिक्कत है, दिक्कत है भी तो कोई दुखी नहीं होना है। अभी आप बोर्ड्स पे फोकस करिए, चलिए ठीक है। तो प्लेन मिरर को अब हम, अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। एक कंप्लीट इमेज देखने के लिए इंसान को मिरर को कितना हाइट होना चाहिए, मिरर का, एक मिरर का कितना हाइट होना चाहिए, एक इंसान अपना कंप्लीट इमेज देख सके, तो मिरर का हाइट होना चाहिए h/2 टू सी द कंप्लीट इमेज, साइज ऑफ मिरर टू सी द कंप्लीट इमेज ऑफ ह्यूमन, कि खुद का वो पूरा इमेज देख सके, इतना उसको साइज ऑफ मिरर चाहिए, h/2, h/2, इसको h कैपिटल कर देता हूं, है ना।
थोड़ा बड़ा लिखता हूं, देखो h/2, h/2 है साइज ऑफ मिरर टू सी द कंप्लीट इमेज, याद रहेगा। अभी देखो इसको सिमिलरिटी से करते हैं, नहीं दिखाऊंगा, क्यों नहीं दिखाऊंगा जरूरी नहीं है, देखो बस इतना याद रखो, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर ऐसे सवाल पूछे टू सी द कंप्लीट इमेज विच इज द फॉर्मूला, तो h/2, मान लो 60 दे दिया तो 60 को रख के 30 आ जाएगा, तो उतना मिरर का होगा। 80 दे दिया 40 हो जाएगा, 100 दे दिया 50 हो जाएगा। तो इस तरीके से एक डेटा दिया रहेगा, या फिर कभी कभी ये दे देगा, फिर ये फाइंड करने बोलेगा कि कितना इंसान का हाइट है, इंसान का हाइट है ना, हाँ इंसान का, ठीक है, कितना हाइट है उस हिसाब से लगेगा, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, ले लो, काम में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम आ जाते हैं अपने एनसीईआरटी सिलेबस में, स्पेरिकल मिरर। बहुत दिनों से आप इसका इंतजार कर रहे थे, आज फाइनली हम इसको थोड़ा शुरू करते हैं जितना हो पाता है। स्पेरिकल मिरर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के सिलेबस के लिए। देखो स्पेरिकल मिरर क्लास 10 के सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे सवाल आते हैं, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन वगैरह वगैरह, डेफिनेशन, किसमें बड़ा इमेज किसमें छोटा, कहां पर रखना होता है, रे डायग्राम वगैरह वगैरह, बहुत दिमाग मतलब दिमाग में नॉक करता रहता है या परेशान करता है, बहुत लेंदी भी है और बहुत अच्छा चैप्टर है, जानने के लिए बहुत कुछ है। तो देखो डरना नहीं है, मैं सब बताऊंगा धीरे धीरे। स्पेरिकल मिरर तो आपको पता ही है, दो है, बचपन में पढ़ा था, कौन से क्लास में पढ़ा था, याद दिलाने की जरूरत नहीं, क्लास 6, मोस्ट प्रोबेबली क्लास 6। सीबीएसई में थोड़ा लेट करता है ये सब, 7 दे देता है, आईसीएसई के बच्चे लोगों को क्लास 5 4 में पढ़ाते हैं, मजाक से हटके, ठीक है। तो देखो ये कनकेव ये कन्वेक्स, मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा, जो भी है आपका एक ही मकसद है, नॉलेज गेन करना। तो देखिए ये कनकेव ये कन्वेक्स, ये तो पता चल गया कैसे कन्वेक्स है और ये कनकेव है, जज कैसे करे। डेफिनेशन लिखाने से पहले मैं बताता हूं जज कैसे करोगे। देखो गुफा, केव मतलब तो गुफा होता है, तो गुफा इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और गुफा के बाहर वाला वो पॉलिश्ड मतलब वो अनपॉलिश्ड है, तो ये इसका हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना, आरएस बोल के लिख दिया। ये अनपॉलिश्ड है, लेकिन ये जो बाहर वाला बेंड आउटवर्ड्स, जो बेंड आउटवर्ड्स है, इनवर्ड्स नहीं आउटवर्ड्स, वो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये जो लाइन मैंने खींच दिया ये अनपॉलिश्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये कनकेव ये कन्वेक्स, समझ में आया, बचपन में पढ़ा था, ये सब बहुत बार पढ़ चुके हो। अगर कोई डाउट होता है इसके बावजूद तो पूछ लेना, डाउट होना जो है मैंडेटरी भी नहीं है, लेकिन हो जाता है कभी कभी, ठीक है। अच्छा स्पेरिकल मिरर क्यों आया, मुझे एक बात बताओ, फिर ये कनकेव कन्वेक्स तो मैंने पहले ही बता दिया, मुझे पहले ये बताना चाहिए था स्पेरिकल कैसे है। देखो स्पेरिकल मतलब कि दिखने में तो सर्कल है, लेकिन 3D होता है स्पेरिकल, उसका भी रेडियस होता है। तो देखो सर्कल का भी होता है, लेकिन स्पेरिकल का भी मैं बोल रहा हूं स्पेयर। अच्छा स्पेयर का वॉल्यूम आपको पता है, 4/3, 4 सरफेस एरिया मुझको पता है 4πr² होता है, वॉल्यूम आप लोग खुद एक बार देख लेना, मैं थोड़ा सा भूल जाता हूं। चलिए 4πr² हो गया इसका सरफेस एरिया, ठीक है, ये स्पेयर है। अच्छा जब स्पेयर को दो तरीके से काटते हो तो दो ही मिरर बन सकता है, एक कनकेव और एक कन्वेक्स, तभी जाके ये कॉन्सेप्ट आया। तो अगर मान लो आपने इसको ऐसे काटा यहां से इस तरीके से, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये रहा, तो ये कनकेव, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर ये वाला रहा, ये बाहर वाला, और इसको यहां से काटा तो ये हो गया कन्वेक्स, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अंदर वाला जिसका होगा वो कनकेव, बाहर वाला होगा तो कन्वेक्स। देखो अब डेफिनेशन लिखाऊंगा, और ये इसका सेंटर होगा, इतना तो पता है, ठीक है, ये बेसिक से ये पता रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन लिखाता हूं, लिखो, मैं बोल रहा हूं आप लोग लिखो। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, the reflecting surface the reflecting surface of the concave mirror, the reflecting surface of the concave mirror is towards center of curvature, center of curvature is towards center of curvature is known as concave mirror। the reflecting surface, अब convex का बोल रहा हूं, convex का लिखो, the reflecting surface of
the mirror is away from the center of curvature, is away from the center of curvature, is away from the center of curvature, the reflecting surface of the mirror is away from the center of curvature is known as convex mirror. आई होप आप लोगों ने डेफिनेशन नोट कर लिया होगा, फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, एक लाइन में ही सुन लेना ध्यान से. कनकेव का मैं बोल रहा हूं, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस is towards the center of curvature is known as concave mirror. The reflecting surface is away from center of curvature is known as convex mirror. Away, अभी देखो डायग्राम से बनाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा और आप खुद डेफिनेशन लिखोगे. जैसे कंकेव मिरर है, अभी के लिए मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब नहीं बता रहा, ठीक है. अभी आप देखो, आप जस्ट आप इमेजिन करो, यहां पर एक सेंटर है, उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. सब बताऊंगा, ठीक है, जब आएगा समय बताऊंगा, डोंट वरी, आराम आराम से सब क्लियर करवा दूंगा. अच्छा, ये सेंटर है, इसके यहां पर, अच्छा इसका कहां सेंटर होता है, इसका भी यहीं पर होता है, तो यहां इसका सेंटर है. मुझे एक बात बताओ, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो यहां है, तो ये तो अवे हो गया ना, दूर हो गया, अवे मतलब दूर, दूर हो गया. लेकिन इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां है, ये तो टुवर्ड्स हो गया, तो ये टुवर्ड्स हो गया. ये कनकेव मिरर है, जो टुवर्ड्स है वही कनकेव, और जो अवे है, अवे मतलब दूर, टुवर्ड्स मतलब नजदीक, तो ये कन्वेक्स है. कन्वेक्स यानी दूर, कनकेव यानी नजदीक. तो ये एक और एक फॉर्म है डेफिनेशन का. तो ऐसे करके खुद से भी डेफिनेशंस बनाना है, तो बोर्ड में इंप्रेशन बनेगा. चलिए इसको नोट डाउन, मतलब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको सेंटर, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अभी मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, इसका बहुत काम है, ठीक है. अच्छा, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं. चलिए एक और कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं. अच्छा, इस मिरर में मैंने प्लेन मिरर में अच्छा, सर्कल में जब भी, सर्कल चैप्टर जब आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, सर्कल में जब भी कोई टेंजेंट पास होता है, ध्यान देना टेंजेंट के बारे में बता रहा हूं. सेंटर से कोई भी रेडियस अगर टेंजेंट में आपका वो होता है, सेंटर से कोई भी रेडियस अगर टेंजेंट में गिरता है तो 90 डिग्री बनाता है. ये तो पता है ना सर्कल का कॉन्सेप्ट. अच्छा, ये स्पेयर के लिए भी एप्लीकेबल है, सिर्फ मात्र स्पेयर के लिए एप्लीकेबल नहीं, मैं कह रहा हूं ये आपका कनकेव और कन्वेक्स के लिए भी एप्लीकेबल है. कैसे एप्लीकेबल है, अगर आप कोई लाइट रे कर्वेचर से पास कराते हो तो वो हमेशा 90 डिग्री पे गिरेगा, यानी नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा. मतलब यहां पर गिर रहा है लाइट रे, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरेगा ना, यहां लाइट रे गिर रहा है, तो लाइट रे गिरेगा तो आपका नॉर्मल टू द सरफेस होगा. इतना पता चल गया? इज इट क्लियर? ओके. तो देखो, अब टॉपिक 2, इसका तो स्क्रीनशॉट ले चुके हो. अब टॉपिक 2, इतना कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, ये आप लोग खुद से भी लिख लेना, ठीक है, कि टेंजेंट होता है. चलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान देना. अब टॉपिक 2, फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर्स. यहां पर स्पेरिकल मिरर लिखा है, फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर, रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर. देखो पहले मुझे बताओ सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है. मैं बोल देता हूं, आप लोग खुद लिख लेना, है ना. मैं अभी कनकेव मिरर ही आपका ड्रॉ करता हूं, उसी से एग्जांपल बता देता हूं, मतलब उसी से आपको समझा देता हूं. कनकेव कन्वेक्स का लगभग एक जैसा है. कन्वेक्स आपका एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, अगर आप उसको फॉलो करते हो, पढ़ते हो, तो वहीं से देख के बना लो, नोट्स बना लो, ठीक है. वहां पर इमेज को बस बना लो, सब जो जो दिया है, ठीक है. इतना तो क्लियर है ना? ठीक है, आप लोग सब जानते हो, समझदार हो. देखो ये है पोल जो मिरर के ऊपर है, यह आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, बीच में होता है ना, सी बोलो इसको, सी, कैपिटल सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर. अभी मैं बताऊंगा इन सब के बारे में, फोकस ध्यान देना. इक्वल डिस्टेंस नहीं हुआ, इक्वल डिस्टेंस में लेना है, यहां कहीं होता है फोकस, ये. अच्छा मुझे एक बात बताओ, ध्यान देना, प्रिंसिपल एक्सिस जो है पोल को कट करता है, तो इसका डेफिनेशन सुनो. द इमेजिनरी लाइन
द इमेजिनरी लाइन विच पास थ्रू मिडल ऑफ द middle of the reflecting surface cuts the center of curvature focus is known as principal axis. middle of the surface, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मिडिल ऑफ द सरफेस यूज करना. यहां से तो पास नहीं करता, ऊपर नीचे नहीं करता, करता है क्या बताओ? वरना सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम रखते तो फिर उसे ऊपर रखते, प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर होता तो उसको ऊपर रखते, तो नहीं रखते. तो सेंटर तो ऊपर होता भी नहीं है, तो प्रिंसिपल एक्सिस 20 से होता है, 20 से उसको याद कर लो. तो इसलिए मिडिल वाला टर्म यूज करना, बस ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सीसी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर, जो इमेजिनरी स्फीयर बन रहा है, ऐसे करके एक इमेजिनरी स्फीयर बनेगा ना, यहां से बनेगा कि नहीं, तो उसका सेंटर. अभी भी देखो मैंने ठीक से ले नहीं पाया हूं स्फीयर, या तो मैंने ठीक से बनाया नहीं, या तो डिस्टेंस मैंने सही से नहीं लिया. तो ये सेंटर होता है इमेजिनरी स्फीयर का. ठीक है, तो मान के चलो कि स्फीयर अगर मैंने सही से बनाया, मतलब मैं बना नहीं पा रहा, आप लोग बनाओगे, तो सेंटर ऑफ जो स्फीयर का सेंटर है वही सेंटर, मतलब वो इमेजिनरी स्फीयर का जो सेंटर है उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल फोकस, ये अगला है. प्रिंसिपल फोकस होता है मिडिल पॉइंट. अच्छा, अब मुझको समझ में आया. देखो एक गलती जो मैंने बनाते बनाते किया, फोकस को पहले लिखना है फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसलिए मैं देख रहा था जब स्फीयर बनाया तो क्यों सेंटर ऑफ कर्वेचर बीच में नहीं आ रहा. ठीक है, तो ये गलती मत करना. स्क्रीनशॉट में भी शायद हो चुका होगा, तो स्क्रीनशॉट में अगर ऐसा हुआ है गलती, अगर हुआ है तो मैं अभी फिर से लिख दे रहा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर सीसी जो है पहले होता है फोकस के, फोकस के पहले होता है. ठीक है, ये हिंदी में लिख दिया, आप इंग्लिश में लिखो, अपने मातृभाषा में लिखो. ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि उसके पहले होता है, फोकस के नहीं, फोकस के बाद होता है. ठीक है, पहले बोल रहा हूं, बाद, डायग्राम में बनाने के बाद मेरे से गलती हो रहा है. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बाद होता है, फोकस के. तो देखो फोकस के बाद. ठीक है, तो देखो, तो प्रिंसिपल फोकस है मैकेनिकल टर्म, इसको कोई फोकस भी बोलता है, गलत नहीं है. तो प्रिंसिपल फोकस क्या है? मिडिल पॉइंट या मिडवे भी बोलते हैं, मतलब बीच में. सो मिडिल पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, बस इतना लिख दोगे काफी है. फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ होता है द डिस्टेंस बिटवीन पोल, ये तो पोल है ना, बताया, कैपिटल पी है पोल, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में उसको एफ बोलते हैं. ठीक है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो है उसको हम बोलते हैं रेडियस, आर, कैपिटल आर. अच्छा, ये एफ है, और एफ जो है फोकस वो एकदम बीच में है, तो ये भी एफ होता है, जानते हो ना, ये भी एफ होता है. तो एफ और एफ इक्वल होता है. पोल से फोकस भी एफ है, फोकस से कर्वेचर भी एफ है, दोनों इक्वल होता है, क्योंकि फोकस एकदम बीच में होता है पोल और कर्वेचर के. तो आर इक्वल टू 2f भी हम लोग लिखते हैं, क्योंकि आर तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर है. समझ में आ रहा है ना? एफ प्लस एफ लिखते हैं. चलो पहले छोटा करके बताता हूं, एफ प्लस एफ, आर इक्वल टू 2f, ये एक फॉर्मूला, इससे भी कई सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, एक दो छोटा करके, मार्क्स लूटने वाला क्वेश्चन है. ठीक है, बस गलती मत करना. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं r/2 इक्वल टू एफ. इसका प्रूफ जो है अगले लेक्चर में बताऊंगा. ठीक है, इसका प्रूफ अगले लेक्चर में बताऊंगा अच्छे से. ठीक है, अगले लेक्चर तक कोशिश करूंगा स्फेरिकल मिरर को काफी हद तक खत्म करने का, कवर करने का. तो देखो इतना है, r/2 इक्वल टू एफ. ये एक क्वेश्चन है, मतलब टॉपिक, मतलब इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं. अब देखो और क्या रह गया है, रेडियस हो गया, फोकस. अच्छा, एपर्चर क्या होता है? एपर्चर कोई बोलेगा इसका डायमीटर, किसका डायमीटर? मिरर एंड से स्टार्टिंग का नहीं, डायमीटर होता है इसका, मतलब कि ये जो सर्कल, द सर्कल कट फ्रॉम द एपर्चर होता है जो सर्कल काटा जा रहा हो, किससे बोलो तो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर. ये एक स्फीयर होता है,
है ना, ये अगर आप बनाओगे तो एक स्फीयर है, स्फीयर स्फीयर है, ठीक से बना नहीं, मतलब सेंटर बीच में आया नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो सब छोड़ो, वो बीच में आता ही आता है। अभी देखो सेंटर जो है, सेंटर नहीं, मतलब ये तो रिफ्लेक्ट स्पेरिकल मिरर है, स्पेरिकल मिरर का ये कनकेव मिरर है, स्पेरिकल मिरर से कनकेव कन्वेक्स दोनों काट सकते हो। कनकेव का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उससे अगर कोई सर्कल काटोगे तो वही सर्कल का रेडियस भी होगा, उसी सर्कल का डायमीटर होगा, तो उस सर्कल के डायमीटर को एपर्चर बोलते हैं। जैसे आप गेंद है, टेनिस बॉल लो, टेनिस बॉल को काटने में आसान होता है, काटोगे तो आपको एक सर्कल, मतलब एक पार्ट निकलेगा, वो जो सर्कल जैसा पार्ट है, हेमिस्फीयर नॉट सर्कल, आप पूरा प्रॉपर सर्कल नहीं होता, उसका बेस सर्कल होता है, लेकिन वो हेमिस्फीयरिकल डोम टाइप का होता है, तो उसका जो डायमीटर है उसको एपर्चर बोलते हैं। क्लियर? तो सब आपको एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा सा डायग्राम जो है वो कैसा हो गया, खिचड़ी हो गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फ्रेश डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आगे बढ़ने का मतलब है मैं एक बार फ्रेश डायग्राम बना के आज का लेक्चर कंक्लूड करूंगा, आगे और बढ़ाना नहीं चाहता, छोटा छोटा लेक्चर्स में बनाता हूं। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो, ठीक है। ये कनकेव मिरर, यहां पर सेम डिस्टेंस में लेना, ये बीच में होता है पोल, यहां पर होता है फोकस, फोकस पहले होता है, यहां पर है कर्वेचर, एकदम एप्रोप्रिएट डिस्टेंस ले लिया। पोल से, पोल से ये देखो बड़ा एरो खींचाओ, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को बोलते हैं रेडियस। अच्छा, पोल से फोकस को मैं दो लाइन से डिनोट कर दे रहा हूं, लाइन सेगमेंट बना के, लाइन सेगमेंट बनाना आता है ना, तो लाइन सेगमेंट से डिनोट करता हूं, इसको एफ बोलते हैं, ठीक है। और क्या रह गया है, और कोई टर्म रह गया है? अच्छा, रूल्स बताऊंगा, इमेज फॉर्मेशन बनाऊंगा, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, रे डायग्राम, सब एकदम क्लैरिटी दे दूंगा। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, बाय।